न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आतंकवाद पर बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर आत्मसमर्पण की चेतावनी, ओडिशा में राजस्व अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का आतंकवाद पर बयान। सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सभी देशों को आतंकवाद की गंभीरता चिंता से लेनी चाहिए। हमें उन्हें याद दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम देश होने का दावा करता है, लेकिन ये झूठ है। भारत में 240 मिलियन मुसलमान हैं, इसलिए पाकिस्तान का ये तर्क। ओवैसी ने आगे बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का सटीक हाल बताया, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर निर्दोष लोगों की हत्या की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को फिर से FTF की ग्रेट लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मजबूत सबूत और मामला है। Well, we went to Bahrain, Kuwait, Kingdom of Saudi Arabia, Algeria. All these countries were definitely worried about terrorism. They had given some strong statements against what happened in Pahalgam, and in some places they said, "Why don't we talk to Pakistan?" We explained to them that when 26/11 happened, our investigators went to Pakistan, gave them DNA samples of those terrorists which were killed by our brave forces. We told them how we caught alive Najmal Kasab. We gave them audio recordings given to us by the Western intelligence or by our own intelligence, wherein some operators were sitting in Pakistan and directing them to kill Indians in Mumbai, but nothing moved. We explained to them Pathankot, when the Pathankot attack happened at our air base. We had reminded them that no country in the world would allow another country's spy agency to come to their air base. Nothing moved. We gave them all the examples but Pakistan initially denies it. Then later on says, "Oh yeah, the ifs and buts are there." So we had explained to them that we had attacked 9 places which are proscribed organizations under United Nations. Then in turn we had to attack because they were attacking our civilians. And we had also reminded them that this Pakistan claims this false boogie of it being a Muslim country. At many places I had reminded them that there are 240 million Muslims living in India. So this argument of Pakistan is completely wrong. You can say that there are differences between two countries, but to take this claim of Muslims or Islam is completely wrong. So hopefully, we hope the meetings were quite successful in our opinion. We had given them the exact scenario of what happened in Pahalgam and how on the basis of religion people were shot dead by the terrorists who had come from Pakistan, who were part of LET, which has a new name called Resistance Front. And hopefully, inshallah, we hope that this will resonate with their leadership, and they will not only condemn but ensure that in future Pakistan does not indulges in promoting terrorism in India. We hope that Pakistan will be brought back into FATF. We reminded them about one particular case of Sajid Mir. Now, till Pakistan was not brought in FATF, Pakistan was saying Sajid Mir is dead. Now, who is Sajid Mir? Sajid Mir was the main conspirator, designer of 26/11. When Pakistan was brought in FATF, an important meeting was being held in Germany. Immediately, Pakistan informed FATF, Sajid Mir is alive. You were denying his existence, and suddenly you bring a person who is dead alive. And then we had also informed that when this country said, "Why don't you speak to them, talk to them?" I said, "What happened with 26/11? Some people were convicted not in terrorism but in money laundering." So India has a very strong case against Pakistan. This is what all of us had tried to impress upon all these 4 countries, the leadership, their important ministers, ambassadors, think tanks which we had met.
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर आत्मसमर्पण की चेतावनी। सांसद और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्टिंग ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये पूरी तरह आत्मसमर्पण का मामला है। अमेरिका, जिसकी आबादी सिर्फ 30 मिलियन से अधिक नहीं है, लंबे समय से सबसे बड़े देश पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ट्रंप द्वारा भारत के अतिरिक्त मामलों में दाखिल होने को बेहद अपमानजनक बताया है और कहा है, हमें वहां से एक कॉल भी आया था जो अस्वीकार्य है। अमरिंदर सिंह ने कहा, एक समय था जब भारत पीछे हटने की स्थिति में नहीं था, तब भी हमने अपनी बात पर डटे रहे। आज भारत एक समक्ष और संप्रभु राष्ट्र है। अगर कोई तीसरा देश हमें निर्देश देने की कोशिश करता है तो हमें उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका जैसा सहयोगियों को सुझाव पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर वे युद्ध रोकने या घुटने टेकने की बात करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। 100% ये सरेंडर तो है ही। नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं भी ये कहता हूं, अब मेरे लिए भी आप बोल दो, क्यों टेलीफोन आया कि भाई सरेंडर हो जाओ, तो सरेंडर हो गए। आज तक सबसे बड़ा देश जिसको अमेरिका धमका रहा है, 30 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, हमारे मामलों में जिस प्रकार से ट्रंप का दखल दिया गया, इससे हमारी नाक कटी है। वहां से फोन आया, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। कोई समय था जब हम सक्षम नहीं थे, तब भी हमने कहा कि अमेरिका के सामने हम अपना सक्षम हैं अपनी बातचीत करने के लिए। तो आज तो हम भारत एक सक्षम देश है। आज हमें तीसरा कोई देश हमें संदेश दे, वो हरगिज, हाँ अमेरिका हम कोई राय दे हम मानेंगे, लेकिन अमेरिका हमें को ये कहे कि युद्ध बंद कर दो और घुटने टेक दो, ऐसा नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा में राजस्व अधिकारियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला। राजस्व एवं आपदा प्रबंधक मंत्री सुरेश पुजारी ने राज्य स्तरीय राजस्व अधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन के मौके पर कहा, लंबे समय के बाद ये ओडिशा में सबसे तेज और व्यापक सम्मेलन है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में तहसीलदार और अन्य निचले स्तर के राजस्व अधिकारियों को मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, आरडीसी, एडीएम और उप कलेक्टर जैसे शीर्ष अधिकारियों के साथ शामिल किया जाएगा, जो भारत में पहली बार हो रहा है। सुरेश पुजारी ने कहा, इस कार्यशाला ने हमें ओडिशा के सभी प्रमुख राजस्व संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और मिलकर व्यवहारिक समाधान खोजेंगे। This is the first such conference in Odisha after a long time. I talked to all the Tahsildar before the commencement of the workshop, and they told me that they had never seen a workshop of Tahsildar and a revenue officer ever in their career. Having said that, I want to make it very clear that this is the first workshop in India where the lowest revenue officer like the Amin and Tahsildar is also connected, and the highest authority, the Chief Secretary, the Development Commissioner, the ACS Revenue, and the RDCs, the collectors, the ADMs, the sub-collectors, all put together. This is first of its kind in India where all the revenue officers, starting from the bottom to the top, are available in the workshop. Number 3, this is not a workshop to make speeches. We will also listen to the delegates who are present here. We will share their experience also, and we will also hear the difficulties from them about the performance and delivery system in revenue department. That apart, we will discuss all the revenue problems of Odisha during the 2-day workshop, and we will find out the solution, and the revenue officers who are delegate here will return back and work for the revenue department, taking the solution from this workshop. Next and last important part is that this conference is intended to find out all type of solution to the revenue problem and be the leader in formation of a new Odisha, develop Odisha, self-reliant Odisha,
by 2036. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने किया खिलाड़ियों का स्वागत। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में #रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की चैंपियन टीम की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने सभी आरसीबी खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें टीम के सदस्य और उनके शानदार प्रदर्शन को सराहा गया। फैंस की भारी मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೇಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಯತ್ರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರೋದು ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾರು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ಅಸಹಕಾರ ಬೇಡ. ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಹೌದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾಡಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಗೀತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತೆರಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾಡು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸವಿಯೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विराट की कप्तानी में भारत बना टेस्ट नंबर 1। हैशटैग IPL फाइनल में विराट कोहली, AB डिविलियर्स और किंग्स गेम की मौजूदगी पर पूर्व विराट की कप्तानी में भारत बना टेस्ट नंबर 1। हैशटैग IPL फाइनल में विराट कोहली, AB डिविलियर्स और किंग्स गेम की मौजूदगी पर विराट की कप्तानी में भारत बना टेस्ट नंबर 1। हैशटैग विराट की कप्तानी में भारत बना टेस्ट नंबर 1। IPL फाइनल में विराट कोहली, AB डिविलियर्स और किंग्स गेम की मौजूदगी पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, हर क्रिकेटर के साथ भावनाएं जुड़ी होती है। हम विराट को चीकू के नाम से जानते हैं। उसे आगे बढ़ता देखना बहुत संतुष्टि से देखा है। उसकी कप्तानी में भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बना। हरभजन सिंह ने आगे कहा कि RCB ने अभी भी अपने पुराने खिलाड़ियों को अपने साथ रखा है, जो टीम का मजबूत आधार है। इस जुड़ाव को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और ये टीम के प्रति प्यार को दर्शाता है। जब विराट कोहली भावुक है, आप भी भावुक हो गए थे उस वक्त, और वहीं AB डिविलियर्स, क्रिस गेल भी उनको कंपनी के साथ में कब उठाया, कैसे देखते हैं दोनों? जी ऑब्वियसली देखिए, एक खिलाड़ी के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम तो विराट को वो चीकू के दौर से जानते हैं, जब वो चीकू हुआ करता था, और उस दौर से हम जानते हैं। और टू सी हिम ग्रो, इट्स ग्रेट सेटिस्फेक्शन कि हमारा एक यंगस्टर जो आया था टीम में, उसने अपना लोहा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में मनवाया है। और उसके कप्तानी के अंदर जिस तरीके से भारत ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 का पायदान पे पहुँचे, और जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट किया, बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ पे मुझे लगता है जो कल हुआ वो बिल्कुल सही था। ट्रॉफी उनके हाथ में आई, वो होना चाहिए था, तो देर आई दुरुस्त आई। पर यह है कि साथ में वो क्रिस गेल भी वहाँ पे थे, AB डिविलियर भी वहाँ थे। ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बड़ी अच्छी सोच है कि जो अपने पुराने लोग हैं उनको साथ में जोड़ के रखा हुआ है, कि जिनके ये ना स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये बिल्डिंग बनी है, तो ये स्तंभ जो हैं वो उनको साथ जोड़ के रखा है। गुड टू सी कि वैसा कनेक्शन टीम के साथ, पुराना कनेक्शन, वो इट गोज ऑन टू शो वो कितना प्यार है। AB डिविलियर वहाँ से आए हैं उड़ के, और क्रिस गेल कितनी दूर से आए हैं उड़ के, और ऐसे उन्होंने कई और खिलाड़ी भी बुला रखे थे जो टीमों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और दे फील दे हैव वन द ट्रॉफी फॉर देम। एंड विराट का भी यही कहना है कि ट्रॉफी हमने हमारे लिए ही नहीं, उन सब फैंस के लिए है। और ऑफ कोर्स ये जो हम सब खेल के जा चुके हैं, ये सब की ट्रॉफी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार गंभीर चिंता का विषय। दिल्ली उपचुनाव न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चर्चा जारी है। CPI महासचिव D राजा के इस मुद्दे पर कहा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे जड़ से खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्रता की रीढ़ और इसे पूरे राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रखना जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्षी दलों से पराश्रम करना चाहिए और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए। There are a couple of issues. Corruption in judiciary is a matter of concern for all citizens, for all political parties. So corruption in judiciary cannot be tolerated, and strong measures will have to be taken up to end corruption in judiciary. At the same time, independence of judiciary is very important. In country like ours, in democracy like ours, judiciary must have independence, and judiciary should not be brought under any political influence or
judiciary should not be brought under some kind of command by the government of the day. So judiciary must have independence. Judiciary must remain neutral, abiding by the Constitution. Constitution is supreme, and judiciary also should work within the framework of Constitution. Corruption, yes, it should be ended. If corruption is prevalent in judiciary, then what credibility judiciary will have? So corruption will have to be fought. As far as impeachment motion is concerned, government should consult the parties in opposition also. Government should not think it can do everything unilaterally. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में 16वें वित्तीय आयोग की अहम बैठक। लखनऊ में आयोजित 16वें वित्तीय आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश को कुल केंद्रीय करों में 41% हिस्सा मिल रहा है, लेकिन अब भी ये बढ़कर 50% किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी को केंद्रीय करों में कम से कम 20% का हिस्सा मिलना चाहिए, जो राज्य की जनसंख्या, जरूरतों और विकास लक्ष्यों के अनुसार है। सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में खुद राज्य की मांगों को सामने रखा और जोर दिया कि उत्तर प्रदेश को उसकी क्षमता और जरूरतों के अनुसार भागीदारी मिलनी चाहिए। को कितना हिस्सा मिलेगा, यही मेन काम है फाइनेंस कमीशन का, और हमने उनका स्वागत भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत महान अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और उनकी विद्वता का मैं कायल हूं। उन्होंने जिस प्रकार से, जो उनका प्रोफाइल है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी धार्मिक अभिरुचि भी प्रदर्शित की है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति ही बहुत मतलब न्यायप्रिय तरीके से अपना काम कर भी सकता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कमीशन का आज यहाँ पर आगमन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा। सर, आपने धार्मिक स्थलों की बात करी, लगातार कहेंगे तमाम धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन का हब बन रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से आज पर्यटन के डेस्टिनेशन बने हुए हैं। आज देखिए कितना बड़ा फुटफॉल हुआ है, लगभग 60 करोड़ से ज्यादा पिछले साल यहाँ पर टूरिस्ट आए। 60 करोड़ से ज्यादा इन धार्मिक स्थलों पर विजिट किया गया। निशालों को लेकर थैंक यू। सर 2 मिनट रुक जाइए, सर प्लीज रुक जाइए। आज बैठक किस तरह की बैठक रही, क्या कुछ रहा आज की बैठक में, किन मुद्दों पर? उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से आज प्रदेश के लिए जो मांग की है, वो खास तौर से सारे स्टेट्स के लिए जो अभी तक 41% शेयर मिलता है, उसके स्थान पर 50% मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को केंद्रीय करों में किसी भी हालत में हमें 20% से कम न मिले। यही हमारी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? तेजस्वी यादव अभी बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता है। अब तक 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ये मौका उनको तब मिला जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन के नेता हुआ करते थे। पहली बार 2015 में और दूसरी बार अगस्त 2022 में। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट गए और तब से लेकर अभी तक वो जब भी मौका मिलता है ये दोहराते नहीं भूलते कि गलती हो गई थी, अब नहीं होगी और अब वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन महागठबंधन का दरवाजा अब भी बंद नहीं हुआ है। आरजेडी नेता लालू यादव कह चुके हैं कि दरवाजा हमेशा खुला है। लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ कभी उनके मुंह से कोई विवादित बात न निकले। एक लिहाज जो दिखता है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीवी का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 17 साल बाद लौट रहा है। ये न्यूज जब से सामने आई है, टीवी लवर्स के बीच जश्न का माहौल है। फैन इस शो के ऑन एयर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इसलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि सालों बाद स्मृति ईरानी एक्टिंग में कमबैक कर रही है।
वे शो में अपने पुराने रोल को फिर से जीवित करेगी। स्मृति इस शो में तुलसी का आइकॉनिक किरदार निभाएगी। अमर उपाध्याय मिहिर के रोल में नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को लेकर और भी कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जानते हैं इस बारे में। क्योंकि सास भी कभी बहू थी इंडियन टीवी के सबसे लंबे चलने वाले शो में गिना जाता है। ये जुलाई 3, 2000 से 6 नवंबर 2008 तक चला था। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सेकंड सीजन 3 जुलाई 2025 से लौटेगा। सालों बाद स्मृति और अमर स्क्रीन शेयर करेंगे। एकता कपूर शो को प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि पहले सीजन में अमन ने कुछ एपिसोड करने के बाद शो को छोड़ दिया था। फिर उन्हें रोनित रॉय ने रिप्लेस किया था। एक बार दोबारा शो संग जुड़ अमर उपाध्याय खुश है। सुनने में आया है शो में स्मृति ईरानी, अमर उपाध्याय के अलावा मौनी रॉय और करिश्मा तन्हा भी नजर आएगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन करता है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह हमला भारत की प्रगति और सामाजिक सद्भाव में बाधा डालने के उद्देश्य में किया गया था, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने अपने साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता से इस दुर्भाग्यपूर्ण इरादों को विफल कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के अंतर्गत भारत में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर इस खतरे का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। ओम बिरला ने कहा कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन करता है और सभी देशों को इस वैश्विक लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद वैश्विक शांति और स्थिरता, मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए सभी प्रगतिशील देशों को मिलकर संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिया कुमारी ने बजट घोषणाओं की समीक्षा, पर्यटकों को दे श्रेष्ठ अनुभव। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी घोषणाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दिया कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं और यादगार अनुभव मिले, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। खासतौर पर उन्होंने बागड़डियो यानी राजस्थान के ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुओं के जीर्णोद्धार को बेहतर जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि ये बागड़डिया हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसके संरक्षण से न सिर्फ हमारी विरासत बचेगी बल्कि पर्यटकों को भी अनोखा अनुभव मिलेगा। घोषणाएं थी उनकी रिव्यू हुई है और जहाँ जो बस यही है कि सब कुछ अब हम लोग जल्दी करें और टाइम बाउंड तरीके से सारे काम शुरू हो जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी सभी कुछ बिल्कुल टाइम बाउंड ही है, चाहे पुष्कर हो, पुष्कर कॉरिडोर हो, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट हो, चाहे बावड़ियाओं का रिस्टोरेशन हो, शेखावटी की बात करूं, सब कुछ सब कुछ चल रहा है। बस ये क्या है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंतर्गत समय लगता है जो लगता है, पर हम लोग तो इसको रेगुलरली फॉलो अप करते आए हैं। छोटी मीटिंग्स भी विभाग की हम लोग करते हैं और इस बार थोड़ी बड़ी मीटिंग थी क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, तो उसको सॉर्ट आउट करके और बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं, कोशिश पूरी चल रही है कि अच्छी तरीके से टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आए राजस्थान, उनकी सुविधाएं अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो और हमारा टूरिज्म सेक्टर और आगे बढ़े। जो बावड़ी पे चर्चा हुई है, क्या कौन से ऐसे हैं जिनसे डिस्कस? नहीं, देखिए बावड़ियाँ जो हम लोग टेकअप कर रहे हैं वो भी स्टेज वाइज ही लेंगे, फेज वाइज लेंगे। पहले थोड़ी बहुत लेंगे, फिर 5-6 अभी लेंगे, फिर उसके बाद और लेंगे। बावड़ियों का रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारी विरासत है और उस समय से बनी हुई ये जो इतनी सुंदर और ये कि टूरिज्म अट्रैक्शन भी है सब बावड़ियाँ। एंड पानी के भी एक बहुत अच्छा वो था, एक के वहाँ से बिल्कुल था, तो उस पे इस बार मीटिंग में वो डिस्कस हुआ है और उसको भी बहुत जल्दी एक कंसल्टेंट के साथ जो कि ये सब चीज़ें समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी तो प्रोटेक्टेड बावड़ियाँ हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में भी आते हैं, तो उनको तरीके से हो, कोई गलत चीज़ का उपयोग ना हो, मटेरियल सही तरीके से हो, एक प्रॉपर जो हेरिटेज कंसल्टेंट है उसके उनकी सलाह के बाद हम लोग उस पर काम करें, वो सब चल रहा है अभी।
पाकिस्तान वॉर के बाद पर्यटकों की संख्या में थोड़ी सी कमी देखी गई थी, तो पर्यटकों की संख्या दोबारा से नहीं, कमी मेरे को नहीं लगता आई, क्योंकि आप बात कर रहे हो किससे, आप लास्ट ईयर समर से उसको कंपेयर कर रहे हो या किससे कर रहे हो? क्योंकि वैसे भी ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन में वैसे भी टूरिस्ट कम होंगे अभी, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ अफेक्ट होने वाला है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो भी कुछ हुआ और उसके बाद मुझे लगता है अब सॉर्ट आउट भी हो गया है, तो अभी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन सुराज की सभा से बोले प्रशांत किशोर, जाति नहीं विचार से जुड़े रहे लोग। बिहार के सारण जिले के अररिया में जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ उमड़ रही है वे उनके व्यक्तिगत करिश्मे का नहीं बल्कि बिहार के बदलाव की बढ़ती हुई जन इच्छा का प्रतीक है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि यहाँ एकत्र हुए लोग न तो सिर्फ उनके रिश्तेदार हैं और न ही उनकी जनजाति से, बल्कि ये सभी समाज के अलग अलग तबकों से आते हैं। लेकिन एक बात जो इन सभी को जोड़ती है वे है बिहार के फैले भ्रष्टाचार और बहरहाल व्यवस्था की प्रति गहरी हताशा। उन्होंने कहा कि हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और एक सार्थक भविष्य देना चाहते हैं। लोग अब उस नेतृत्व से मुक्ति चाहते हैं जो सिर्फ वादे करता है लेकिन नतीजे नहीं देता। ये जनसमूह बिहार की नई दिशा की मांग कर रहा है, एक ऐसी दिशा जहां ईमानदारी, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी जाए। मेरा ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, बिहार में बदलाव करने वालों की चाहत का ग्राफ बढ़ रहा है। ये आप लोग को ग्राफ अभी देख रहा है, आप अपना कैमरा घुमाकर देखिए, ये कौन लोग हैं? ये हमारे जाति के लोग नहीं हैं, ये हमारे परिवार के लोग नहीं हैं, ये हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, ये अलग अलग जाति वर्ग समाज के लोग हैं। लेकिन हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी बिहार के भ्रष्टाचार से परेशान है, हर आदमी बदलाव चाहता है, हर आदमी अपने बच्चे के लिए शिक्षा रोजगार चाहता है, इन नेताओं से मुक्ति चाहता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने आरसीबी को बधाई दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने विधान सौध में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2025 की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर आईपीएल 2025 चैंपियन और हैशटैग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्रेंड कर रहे हैं। आरसीबी ने रविवार को खेले हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत ली है। ये जीत न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि करोड़ों फैंस के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। डीके शिवकुमार ने कहा कि ये जीत सिर्फ एक टीम की नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक की शान है। उन्होंने टीम को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। आरसीबी की इस ऐतिहासिक जीत ने बेंगलुरु में जश्न का माहौल बना दिया है। फैंस सड़कों पर उतरकर अपनी टीम का अभिनंदन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप मामले में एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपी अब भी फरार। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तुर्की थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर मंजर आलम और सहायक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फरीद शामिल है। इन तीनों पर ड्यूटी में लापरवाही और एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप है। यह घटना 31 मई को तुर्की क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता की मां ने अगले दिन पुलिस थाना पहुंची और एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई नहीं की गई। इसके बजाय पुलिस ने आरोपी को थाना बुला लिया और पीड़िता की मां के सामने ही उसे छोड़ हुए महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाने की सलाह दी। जब तक मामला महिला थाना पहुंचा और एफआईआर दर्ज हुई, आरोपी फरार हो गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलीज से पहले ही हाउसफुल 5 ने कमाए 100 करोड़ से ज्यादा। एडवांस बुकिंग में शाहिद की वेदा को पछाड़ा। फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है, जो एक साथ पूरे इंडिया में 5000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। इसे लेकर शानदार बज़ देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन तरुण मनसुखानी ने किया है। यह हाउसफुल सीरीज का 5वां पार्ट है, जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डीनो मोरिया, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फारूकी,
त्रिगंगना सिंह, सोनम बाजवा, सैयदा शर्मा, चमकी पांडे, नीलकिन धीर और जॉनी लीवर जैसे स्टार नजर आएंगे। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और उसके साथ ही रिलीज से पहले ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।